নমস্কার, আমি চিরঞ্জন, TSNM নিউজে আপনাদের স্বাগত। আপনারা দেখছেন আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো। আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা কিছু বলি না, তবে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজ বলবেন রাজ্যের অনারেবল চিফ মিনিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী সভায় কুলটিতে এসে তিনি বক্তব্য রাখেন, তারা সরাসরি শোনাবো আসানসোলের কুলটিতে কি বললেন তিনি, কি বোঝাতে চাইলেন মানুষকে। এখানকার প্রাক্তন MLA উজ্জ্বল চ্যাটার্জি আছেন, বিধান উপাধ্যায় চিরকালীন মানিকদার ছেলে বিধান বাড়াবড়ির বিধায়ক আছেন এবং এখানকার মেয়রও আছেন। আমার এখানে অনেক নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত আছেন, কিন্তু যেহেতু সময় কম আর প্রচণ্ড গরম, আপনারাও খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আর আমি গত 1 মাস ধরে, আমার আজকে প্রায় 28 দিন হয়ে গেল, 28 দিন ধরে রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে চিৎকার করে করে বক্তৃতা দেওয়া, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘোরা খুব মুশকিল। যে বাবুরা ইলেকশন ডিক্লেয়ার করেন, তারা একটু ভাবে না যে ইলেকশন ডিক্লেয়ার করতে গেলে সেখানকার তাপমাত্রাটা দেখে নেওয়া উচিত, সেখানে বাচ্চাদের স্কুল চলছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত। আজকে বলুন তো, এখানেই তো প্রায় 46-47 ডিগ্রি আজই হবে, 50 ডিগ্রি 52 ডিগ্রি ভোটের টেম্পারেচার, তার মধ্যেও কষ্ট করে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা জানেন এই জেলা নতুন জেলা, আপনারা তৃণমূলকে জেতানোর পর আমরা বর্ধমান পশ্চিম এবং দুর্গাপুর নিয়ে আমরা নতুন জেলা, নতুন পুলিশ কমিশনারেট তৈরি করেছি। আমাদের এই জেলার মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি এবং বারাবণী এলাকাগুলো পড়ে। আর এখানকার প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, যিনি সারা দেশে একটা নাম, যাকে সবাই সম্মান করে, যার ভারতরত্ন পাওয়া উচিত ছিল, ওনার এবং অমিতাভ বচ্চনের, আমি এখনো জনগণায় বলি, তাদের কোনোদিন এই সরকার সম্মান দেয়নি। কিন্তু আমি সম্মান দিয়ে বাংলায় নিয়ে এসেছিলাম। আপনারা জানেন, যদি আপনারা বলেন এই নির্বাচনটা কার, এটা দিল্লির নির্বাচন, এটা বিধানসভার নির্বাচন নয়। বিজেপি বলছে একবার এক এক রকম প্রার্থী দেয়, এবারে প্রার্থী বদলে গেল। বর্তমানে যিনি জিতেছিলেন অনেক কিছু খরচাও করেছিলেন, তারপরে 5 বছর আর আসেননি, তারপরে অনেক কষ্ট করে এখানকার সিটটা ম্যানেজ করেছেন। আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে, বলুন আপনিও তো শিখ কমিউনিটি বিলংস করেন, দেশের নাগরিক হিসেবে আমার তার জন্য সম্মান আছে। যখন আমাদের পুলিশ অফিসারকে খালিস্তানি বলে গদ্দার, তাকে গালাগালি দিল, মুসলিমদের পাকিস্তানি বলে গালাগালি দিল, আপনি একবারও প্রতিবাদ করেননি কেন? 100 দিনের কাজে যখন শ্রমিকরা মাইনে পাচ্ছিল না, আপনিও তো এমপি ছিলেন, আমাদের এমপিদের সাথে কোনোদিন গলা মিলিয়ে বলেছিলেন গরিব শ্রমিকদের মাইনে দাও? কোনোদিন বলেছিলেন সারি সারনা ধর্ম তাদের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত? কোনোদিন বলেছিলেন বাংলার আবাস যোজনা বন্ধ করে দেওয়া নয়, গরিবদের টাকাটা দেওয়া উচিত? প্রতিদিন মিথ্যে কথা বলে প্রচার করছেন, আর এত মিথ্যে কথা বলে যে কি বলবো। এখানে অন্ডাল এয়ারপোর্ট কে করেছে? আমরা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় কে করেছে? আমরা করেছি। নজরুল ইসলামের নামে চুরুলিয়ায় তার জন্মস্থান। এখানে মাল্টি সুপার হসপিটাল কে করেছে? আমরা করেছি। উর্দু একাডেমি কে করেছে? আমরা করেছি। হিন্দি কলেজ কে করেছে? আমরা করেছি। ITI কে করেছে? আমরা করেছি। আহরণ কে করেছে? আমরা করেছি। একটার পর একটা কাজ আমরা করে গিয়েছি। আর আপনারা প্রায় 30,000 মানুষ আজকে রানীগঞ্জের ধস কবলিত, যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে,
বারবার বলা সত্ত্বেও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে কাজটা শুরু হয়েছিল বন্ধ করে দিয়েছেন। আগামী দিন যদি কোনো বিপদ হয় আমি কিন্তু ইসিএলকে ছাড়বো না, এবং আপনারা জেনে রাখবেন কোল ইন্ডিয়াকেও ছাড়বো না, এবং বিজেপির নেতাদেরও ছাড়বো না। তাও তো আমরা অনেক বাড়ি ইতিমধ্যে রেডি করে রেখেছি। যারা আসতে চান, যাদের জায়গা আছে তারা চলে আসতে পারেন। ভেবে দেখুন, জল স্বপ্ন প্রকল্প বলে বেড়াচ্ছে কি সব মোদি করেছে, কোথা থেকে করলো? অর্ধেক টাকা আমরা দিই, জমির টাকা আমরা দিই, পাইপ বসাই আমরা, মেনটেনেন্স করি আমরা। 1,75,00,000 লোকের বাড়িতে 2025-এর শেষের মধ্যে সবার বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে যাবে। 75 লক্ষ অলরেডি হয়ে গেছে, 75 লক্ষ লোকের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। এখনো 1 কোটি লোকের বাড়িতে যাওয়ার জন্য কাজ চলছে, সেটাও হয়ে যাবে। আমি কুলটি আসলেই আমার চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের কথা মনে পড়ে। আমি যখন রেলমন্ত্রী ছিলাম আমিও এসেছিলাম চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানায়, এবং আমি অনেক ওয়াগনের অর্ডার বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কোচের অর্ডার বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কোচ যাতে বেশি করে তৈরি করতে পারে, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ যেন আগামী দিন সারা বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। আমি জানি না আজ আপনারা কেমন আছেন। আজকে তো রেল ডিপার্টমেন্টটাই তুলে দেওয়া হয়েছে, বাজেটও হয় না, অর্ডারও দেওয়া হয় না। শুনেছি টেন্ডার করে বিক্রি করার চক্রান্ত চলছে। এখানে 11টা কয়লার খনিকেও টেন্ডার করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সবই যদি বিক্রি করে দেন, জনগণকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেন না, কেউ পেনশন পান, আপনারা পেনশন পান না। শুধু আমাদের রাজ্য, সারা ভারতবর্ষের বুকে একমাত্র আমরা পেনশন দিই সরকারি কর্মচারীদের, আর কোনো সরকার দেয় না। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো দেয় না, মাথায় রাখবেন। বলছে উনি কি রেশন দেন। আমি একটা হিসেব দিই আপনাদের কাছে, বিনা পয়সায় চাল পান আপনারা, কত টাকা লাগে জানেন? এর জন্য আমার নিয়ম ছিল, এখন একটা ট্যাক্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের এখান থেকে 6,80,000 কোটি টাকা তুলে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাদের 1,80,000 কোটি টাকা ফেরত দেয়নি। নিয়ম ছিল আমাদের 9,000 কোটি টাকা দিতে হবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 7,000 কোটি টাকা দেবে, অর্থাৎ 16,000 লোকের বাড়িতে রেশন পৌঁছানোর জন্য। কিন্তু গত 2 বছর কি হয়েছে জানেন? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেশন বাবদ আমরা 12,000 টাকা পাইনি। কাজেই 9,000, 9,000, 18,000 এবং 12,000, 30,000 কোটি টাকা আমরা দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে। তাই আজকে বিনা পয়সায় রেশন যাচ্ছে। खाली झूठा बोलते हैं, इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर मैंने कभी नहीं देखा, इतना जुमलाबाज पार्टी मैंने कभी नहीं देखा। खाली बंगाल को बदनाम करते हैं, और बंगाल को बदनाम करते हैं, देश को बेचने चाहते हैं, मजदूर को रुपया तोड़ लेता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनआरसी बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया, क्या बना दिया। कितना लोगों ने जिंदगी भर कुल्टी में रहते हैं, कोई आसनसोल में रहता है, कोई दुर्गापुर में रहता है, कोई बड़ाबुरी में रहता है, कोई आसनसोल में रहता है, कोई रानीगंज में रहता है, कोई जामुरिया में रहता है। हम लोग कभी एनआरसी नहीं किया इसी के लिए कि हम लोग किसी को नहीं हटाएंगे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट एनआरसी ले आया। क्या ले आया? यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया, इसके लिए कि आप लोगों को धक्का मार के इधर से निकाल देना। मोदी का एक ही काम है, देश बचाना नहीं। ওরা ধর্ম বিক্রি করে দিচ্ছে, ওরা জাতি বিক্রি করে দিচ্ছে, ওরা মানুষ বিক্রি করে দিচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই আসানসোলে শেল গ্যাসের সন্ধানে
22,000 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, লোকাল ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবেন। পাশেই দেউচাপাদমি 32,000 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, 1 লক্ষ ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। আর ডানকুনি থেকে পানাগড়, পানাগড় থেকে রঘুনাথপুর, পানাগড় থেকে উত্তরবঙ্গ, এগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হচ্ছে। আরও অনেক মানুষ কাজকর্ম পাবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মাথা ঠান্ডা করে একটু ভাবুন, যিনি দাঁড়িয়েছে শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে, আমি জানি তিনি আগেরবার কিভাবে কোন ওষুধের মাধ্যমে ভোটে জিতেছিলেন। এবারও সেই ওষুধই উনি অ্যাপ্লাই করবেন। কাউকে 1, কাউকে 2, কাউকে 5, কাউকে 10, ওনাকে বলুন 15 লাখ টাকা করে দিতে হবে। নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন আমি সবাইকে ক্ষমতায় আসলে 15 लाख रुपया करके हम उसका पॉकेट में देंगे, हम उसको अकाउंट में देंगे। 5,000 10,000 में नहीं चलेगा, 15 लाख रुपया वापस चाहिए। आपको मिला? कभी मिला? तो अगर जो कैंडिडेट हुआ है वो आके आपको एक एक पैकेट दे दे और कहे कि चुपचाप करके मेरे को वोट दो, मत दो, मत दो, वो जीतेगा और भागेगा, नहीं आएगा। शत्रुघ्न सिन्हा को तो 2 साल खाली मौका मिला। पहले तो बाबुल सुप्रियो था, वो बीजेपी का था, पहले हमारे साथ बाद में जो ज्वाइन किया, लेकिन उसको हम देखा दुर्गा पूजा में भी आते हैं, गुरुद्वारा का प्रोग्राम में भी बोला जाए तो आते हैं, मुस्लिम पर्व में भी आते हैं, काली पूजा में भी आते हैं, आसनसोल में जब भी जरूरत है और बंगाल में जब भी जरूरत है उन्होंने आते हैं। इसी के लिए उनको समर्थन करना ये आप लोगों को काम है। अभी एक बात आप याद रखिए कि आज चित्तरंजन लोकोमोटिव चला गया, जाने वाला है। बहुत सारे कोल इंडिया कंपनी किसको किसको टेंडर बेचा मेरे को पता नहीं है। इसी के लिए अगर आपको दिल्ली में बीजेपी सरकार हटाएंगे तो भी देश रक्षा होंगे। যদি না চান তাহলে মনে রাখবেন নরেন্দ্র মোদী আর বিজেপি দেশকে বিক্রি করে দেবে, মানুষকে বিক্রি করে দেবে, धर्म बिक्री कर देवे, अपना रोटी कपड़ा मकान के बेच देगा। उन्होंने सबको बेच देंगे कि उन्होंने बेचने के लिए आया है। आप लोगों को वोट खरीद करते हैं जुमला कह के। 100 दिन का काम का मजदूर अगर रुपया ना मिले तो आप रुपया नहीं दिया, बताए तृणमूल चोर है। आप दिखाओ, सबूत दिखाओ, ले आओ महाराष्ट्र का सबूत, ले आओ उत्तर प्रदेश का सबूत, ले आओ बिहार का सबूत। 350 टीम आपने भेजा, हम लोगों ने सब तैयार कर दिया था, उसका बात भी आपने नहीं किया। लेकिन हमारा वादा ही वादा है, हमारा एमपी लोग लड़ाई किया है और 100 दिन का काम को 3 साल जिसको वेतन नहीं मिला हम लोगों ने दे दिया, हमारा सरकार की ओर से दे दिया। इसी के लिए कि हम वादा रखते हैं। आगे हमने 43,000 घर हम बढ़ा दिया, 11 लाख का लिस्ट भी हम भेज दिया बहुत दिन पहले, इंडिविजुअल क्वेरी करके। आज तक पैसा नहीं दिया। मैं भी 3 बार जाके मीटिंग किया कि मेरे को स्टेट का सवाल है, गरीबों का सवाल है, नहीं दिया। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ दिसंबर महीना में हम 11 लाख लोगों को लिए फर्स्ट जो किस्ती है 60,000 रुपये हम दे देंगे। उसका बाद 3-4 महीना के बाद फिर 60,000 मिलेगा, 1,20,000 रुपया करके आपको मिलेगा। जिसको मिट्टी का घर है, ये गरीब है। आप देखिए हर मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, आप लोगों को पता नहीं है ना। हार्ट का मेडिसिन को भाव बढ़ा दिया चुपचाप करके। प्रेशर का, ब्लड
प्रेशर का मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, ब्लड शुगर का मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, हार्ट का मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, गैस का भाव बढ़ा दिया, आलू पटल से लेकर हर कुछ का भाव बढ़ा दिया। लेकिन मोदी बाबू आपको भाव तो कमती हो गया, जनता ने आपको तो पसंद नहीं करता है। क्यों आप गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं? क्यों इतना झूठा बोलते हैं? क्यों आप बिहार में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है, और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेशखाली में मेरे को आने का पहले मिला, और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था। वो सोचता है बोम मार के नकड़ी खा के वो इलेक्शन में जीत सकता है। इट इज आवर चैलेंज ऑल्सो, बोम मार के नौकरी खा के आप चाकरी नहीं जीत सकते हैं। जनता के लिए भाग्य क्षमता नहीं कि मारा घुसाई, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आपको भाषण नहीं चाहिए, बेरोजगारी का रोजगार चाहिए। हम कल एक जानकारी के लिए बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कल एक मीटिंग किया करके बोला कि हमारा इधर में बांग्ला का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर कोई मीडिया का हिम्मत हो, अगर आप उसको नहीं डरते हो, तो हम एक चैलेंज करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस। कल मोदी बाबू ने बोला है तृणमूल के लिए डेवलपमेंट बंद हो गया है। हम करीब 4 सेक्टर आपको कहने चाहूंगी। जीडीपी, जिसको हमको जीएसडीपी कहने जाता है, इंडिया में क्या है परसेंटेज? आपका 10 साल में 8.87 और बंगाल में 11.84। आप रिजाइन करो, उसका बाद बंगाल को चैलेंज करो। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? इंडिया में 1.82% और हमारा इधर में है 2.11%। इंडस्ट्री इंडिया में 5.4%, हमारा इधर में है 7.4%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका इंडिया में है 8.03%, हमारे इधर में कमती होके हुआ 5.65%। वो भी आप चाकरी ले लेता है। क्यों आप 26,000 टीचर को चाकरी खा लिया? क्यों खा लिया? नौकरी देने तो नहीं सकता है। नौकरी लेने के लिए दोस्ती बना के मस्ती चलता है। लोगों का जिंदगी आग में जलेगा और आपका मस्ती चलेगा? नहीं चलेगा। हम पूरा टीचर लोगों को साथ, पूरा कर्मचारी का साथ, हम पूरा परिवार का साथ, हम लोगों ने आपका साथ है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। खाली मेरे को एक विनती है, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ में खड़ा हुआ है, उनका पास बहुत रुपया है, उन्होंने रुपया बहुत डालेंगे। अगर रुपया डालते हैं सबको पैकेट देता है। हम सुना लास्ट इलेक्शन में कोई ने मेरे को बोला, आपने बोलो हाँ रुपया का तो जरूरत है, आप एक काम करो, आप 15 लाख करके रुपया हमारा बैंक अकाउंट में डाल दो, जो आपको लीडर का बोलना था। इससे कम में नहीं चलेगा। भंडार चाहिए, स्टूडेंट का कन्याश्री चाहिए, शिक्षाश्री चाहिए, तपशिली भाता चाहिए, मेधाश्री चाहिए, सबूत साथी चाहिए, साइकिल चाहिए, मजदूर को रक्षा कवच चाहिए, प्रोविडेंट फंड का रुपया चाहिए। इधर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ईएसआई हॉस्पिटल था उसको भी हमने अपने कोई काम नहीं करने देता। हमने जितना संभव हमने कर दिया। फिर हम चाहते हैं अंडल एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, जैसे अपना इंडस्ट्री आपको सब कुछ अच्छा से अच्छा हो। आपको इधर में इतना इंडस्ट्री आ रहा है, आपका घर घर में पानी पहुंच जाएगा, आपका रेशन बिना पैसा में मिलेगा। लक्ष्मी भंडार जिसको मिलता है, मैं उसको कहेंगे कि आपका बीजेपी कहा है 3 महीना बाद लक्ष्मी भंडार हम उठा देगा। हम बोला तुम्हारा साहस तो कम नहीं है, तुम कितना पहचानते हो माता जी बहन को, अम्मा को कितना पहचानते हो, हम ज्यादा पहचानता हो। ऐसे के लिए कहा एक बात मत करना, फिर अगर ये बात तुम करोगे तो एक भी माँ बहन का वोट, भाई का वोट भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी भंडार चलेगा और जिसको 60 साल हो गया और सारा जिंदगी भर उसको मिलेगा, पूरा जिंदगी भर माँ बहन को सम्मान मिलेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी हम बहुत सारे काम करते हैं। मैं आज भी कहने चाहूंगी कि आप लोग को सेफ्टी सिक्योरिटी देखना हम लोग को कम है। हमारा जो आदिवासी भाई बहन है वो लोगों को हम पट्टा जो हमारा बोन का अधिकार हमने दिया है उसका जमीन ना फोर्सफुली कोई खरीद ले, इसको बारे में भी हम काम किया। हमारा बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमारा अलग स्टेट हमारा एडजेसेंट स्टेट झारखंड बिहार से आते हैं। झारखंड हमारा दोस्त है, बिहार भी हमारा दोस्त है। ऐसे नहीं है कि मोदी का हो गया इसी के लिए पूरा देश उनका है, ऐसा बात नहीं है। तो इसी के लिए आपको हम चाहते हैं कि एक बात याद रखिए, जब वोट डालने जाएंगे हम बिना पैसा में चावल दे रहे हैं और मोदी बाबू क्या कर रहे हैं, बिना পয়সায় দিচ্ছি আমরা, বিনা পয়সায় চাল। ওহে নন্দলাল 1000 টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরে আরো বাড়াবে, রোজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে আর মিথ্যে কথা বলে, একটার মধ্যেও কোনো সত্যতা নেই। তাই নিশ্চিন্ত থাকবেন, মনে রাখবেন যে আমরা যেটা বলি আমরা সেটা করি, আমরা কথা রাখি। আমি লক্ষ্মীর ভান্ডার করবো বলেছি, করে দিয়েছি। কিষাণ ভাতা 10,000 টাকা দেবো বলেছি, দিয়েছি। যার 1 কাঠা জমি আছে সেও 4,000 টাকা পায়। সমুদ্র সাথী 2 মাস যেতে পারবে না মৎস্যের জন্য, তাকেও 5,000 করে 10,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের জমির ইন্স্যুরেন্স ওটাও আমরা করে দিচ্ছি বিনা পয়সায়। কৃষকদের জমি মিউটেশন ওটাও ফ্রিতে আমরা করে দিচ্ছি। গরিব লোকেদের পাট্টা ওটাও আমরা দিচ্ছি। সংখ্যালঘুদের এলাকার উন্নয়ন ওটাও আমরা করছি। আমরা প্রত্যেকে যার যতটা পারি তার উন্নয়ন করার চেষ্টা করি। আপনারা জানেন এই যে আহরণ বলে এখানে যে স্কুলটা আছে दुर्गापुरे, आपको याद है जब पहले मैं सोचा था कि फैशन के लिए तो आज दुनिया में टूरिज्म में बहुत काम होता है, तो क्यों ना हम हमारा घर का जो छोटा छोटा लड़का लड़की है वो फैशन का ट्रेनिंग लेके वो अच्छा से अच्छा काम करे। तो हमने जब तैयार किया था तो किसी ने बोला था कि इसको भी जॉइंट एंट्रेंस का माध्यम में होना चाहिए। हम बोला देखो जो बहुत अच्छा है उसको तो सब जगह में चांस मिलता है, लेकिन जो गरीब है जिसको पास में कुछ नहीं है उसको कोई मौका मिलता नहीं है। इसी के लिए जो चाहते हैं उसको अरेंज कर दो। आप परीक्षा ले लो, एग्जाम कर लो, क्वालिटी है कि नहीं है देख लेता है। एक बात कहूँ, हमारा पाड़ा में एक लड़की रहता है, वो जब 12 क्लास में उसको रिजल्ट थोड़ा से खराब हुआ, फर्स्ट डिवीजन में पास किया था, लेकिन उसको माताजी उसको बहुत पीट रहा था। मैंने बोला क्यों पीट रहा है, तो बोलता है देखो देखो
अभी बोलता है हम ग्रेजुएशन नहीं पढ़ेंगे, हम फैशन कोर्स पढ़ेंगे। तो हम बोला तेरे को क्या आपत्ति है? अगर कोई उसको अपन पाय पे खड़ा होके कुछ करेंगे तो तेरे का इतराज का कोई बात नहीं है। इसका बाद वो लड़की 2 साल ट्रेनिंग लिया। और आपको पता है, एक गरीब माँ का लड़की, एक तपस्वी घर का लड़की का माँ का लड़की आज न्यूयॉर्क में काम करता है। न्यूयॉर्क में एक बड़ा होटल में काम करता है। ऐसे हमारा बहुत कन्याश्री है। आज पढ़ने के लिए पैसा भिक्षा नहीं मांगने पड़ता, चाहे माइनॉरिटी हो, वैश्यश्री है, मेधाश्री है, तपस्वी बंधु है, दलित बंधु है, साइकिल देता है क्लास 9 में, क्लास 12 में स्मार्टफोन देता है, बिना पैसा रेशन देता है, लक्की भंडार देता है, रूपश्री देता है। हमारा पास 67 स्कीम है जो किसी का पास नहीं है। हम कल एक जानकारी के लिए बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कल एक मीटिंग किया करके बोला कि हमारा इधर में बांग्ला का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर कोई मीडिया का हिम्मत हो, अगर आप उसको नहीं डरते हो, तो हम एक चैलेंज करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस। कल मोदी बाबू ने बोला है तृणमूल के लिए डेवलपमेंट बंद हो गया है। हम कल 4 सेक्टर आपको कहने चाहूंगी। जीडीपी, जिसको हमको जीएसडीपी कहना जाता है, इंडिया में क्या है परसेंटेज? आपका 10 साल में 8.87 और बंगाल में 11.84। आप रिजाइन करो, उसका बाद बंगाल को चैलेंज करो। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? इंडिया में है 1.82% और हमारा इधर में है 2.11%। इंडस्ट्री इंडिया में 5.4%, हमारा इधर में है 7.4%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका इंडिया में है 8.03%, हमारे इधर में कमती होके हुआ 5.65%। वो भी आप चाकरी ले लेता है। क्यों आप 26,000 टीचर को चाकरी खा लिया? क्यों खा लिया? नौकरी देने तो नहीं सकता है, नौकरी लेने के लिए दोस्ती बना के मस्ती चलता है। लोगों का जिंदगी आग में जलेगा और आपका मस्ती चलेगा? नहीं चलेगा। हम पूरा टीचर लोगों के साथ, पूरा कर्मचारी का साथ, हम पूरा परिवार का साथ, हम लोगों ने आपका साथ है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। खाली मेरे को एक विनती है, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ में खड़ा हुआ है, उनका पास बहुत रुपया है, उन्होंने रुपया बहुत डालेंगे। अगर रुपया डालते हैं सबको पैकेट देता है। हम सुना लास्ट इलेक्शन में कोई ने मेरे को बोला, आपने बोलो हाँ रुपया का तो जरूरत है, आप एक काम करो, आप 15 लाख करके रुपया हमारा बैंक अकाउंट में डाल दो, जो आपको लीडर का बोलना था। इससे कम में नहीं चलेगा। আমি এইটুকু বলে আপনাদের সকলকে বলবো, অনেক গরম, আমারও অনেক মিটিং আছে, আমি আবার আসানসোলেও যাব। আপনাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে, নমস্কার জানিয়ে, সৎ শ্রীকাল জানিয়ে, সালামু আলাইকুম জানিয়ে, জোহার জানিয়ে সকলকে বলবো অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও মা বোনেরা মনে রাখবেন, সকাল সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। ভোট দিচ্ছেন কোনখানে? জোড়া ফুলে ভোট মাঝখানে। আমার আপনার সবার সাথে এরা সকলে ভালো থাকবেন। বাংলা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে। আর আগামী দিন আমরাই দেশ চালাবো, আমরা বাংলা থেকে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেবো। বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না, এটা মাথায় রাখুন। বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে, ঘাবড়ে গেছে, দুটো
নিউজ ফেসবুকেও ফলো করুন আমাদের।